Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video we are going to start the concept of domain, range and graph of ITF. So let's do to start. Hello बच्चों, so देखो in this session we are going to start the concept of domain, range and a graph of ITF. But in previous class we have discussed the introduction part of ITF. This is your introduction part which I have already discussed in the previous class. Okay, a function is invertible when it is bisective. Y equal to f of x मतलब x equal to f inverse y. By the help of sin x we have understood. Okay, so this is your introduction part of chapter ITF. Now in this session we are going to start how to draw a graph of ITF with its domain and range. Clear? So let's do to start. So let's see how to calculate domain, range and its ITF graph. Okay, graph of ITF. So first देखो ये तो पहला फंक्शन है हमारा y equal to sin x. Already we have discussed how to draw graph and how to calculate domain range of simply trigonometric function sin x. जैसा कि इसका डोमेन था रियल नंबर एंड रेंज था क्या y एक्सिस में. y एक्सिस का रेंज क्या होता है y एक्सिस, डोमेन होता है x एक्सिस. क्लियर? सो दिस इज -1 to 1 इज रेंज. लेकिन साइन इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन में ग्राफ कैसे होता है ना, थोड़ा चेंज कर दो. y का वैल्यू x एक्सिस में, y x एक्सिस का वैल्यू y एक्सिस में. थोड़ा देखो -1 1 कहाँ था y एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस पर. ओके, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स x. x के प्लेस में वी आर टेकिंग द वैल्यू नॉट डिग्री. इन x इन प्लेस ऑफ x जस्ट टू टेक -1 to 1. ओके, सो यू आर गेटिंग द डिग्री इन y एक्सिस. जस्ट टू रिवर्स, देखो थोड़ा रिवर्स हो गया ग्राफ. सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन इज योर x एक्सिस, दैट विल नॉट चेंज. डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x एक्सिस. सो यहाँ पे देखो डोमेन क्या होगा -1 to 1. डोमेन क्या होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल. लेकिन रेंज क्या होगा, देखो रेंज मतलब y एक्सिस. यू विल टेल द रेंज इज y एक्सिस. दैट मींस ऑन y एक्सिस वी कैन टेक एनी वैल्यू. दैट मींस यू कैन टेल r is like this, but here the range is not r. क्योंकि ध्यान से सुनो, साइन यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है. सो इनवर्स फंक्शन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, दैट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2. सो देखो इन दिस ग्राफ फ्रॉम व्हिच पार्ट टू व्हिच पार्ट, व्हिच पोर्शन टू व्हिच पोर्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. दैट इज योर रेंज. सो दैट मीन्स ऑलरेडी आई हैव टॉट इन द लास्ट क्लास -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 में हमारा ये जो इनवर्स फंक्शन है इट कैन बी इजीली इन्वर्टेबल फ्रॉम -π/2 से π/2. इन दिस पोर्शन इट कैन बी 1 1 एंड ऑन 2, then it can be invertible. That's why its range on y axis must be -π/2 to π/2, close interval -π/2 to π/2, because in this range it can be invertible. Okay, don't write r, because when you write r that may be 0 से पाई तक हम लिख सकते हैं, लेकिन 0 to पाई क्या होता है, ये तो 1 1 नहीं है. Okay, so that's why you can't write r. So for making invertible you have to take restriction. That restriction is your range हो गया इनवर्स फंक्शन में. Okay, so this is the domain and range of sin inverse x. This is the sin x, this is the sin inverse x का domain range. Clear? So note it down. So next देखो we will discuss the next function is your cos x. Okay, so y equal to cos x. y equal to cos x. उसका तो ग्राफ पता है, how to draw a graph. Let's see, this is your graph of cos x. Already we have discussed last class also. So its domain is what, real number. Okay, and the range is what, -1 से 1 तक. लेकिन cos इनवर्स x का क्या होगा, देखो थोड़ा ग्राफ तो इंटरचेंज हो गया. x एक्सिस के प्लेस में हमें y का वैल्यू ले आए, y प्लेस में x एक्सिस का वैल्यू मतलब रेडियन. सो डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन is your x axis also, that is -1 to 1.
-1 to 1, दिस इज योर डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा, देखो रेंज क्या होगा, रेंज मतलब देखो वी कैन टेक आर बिकॉज इनवर्स फंक्शन मतलब दैट मस्ट बी बाइजेक्टिव। सो देखो फ्रॉम व्हिच पोर्शन टू व्हिच पोर्शन, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो व्हिच पोर्शन, दिस पार्ट चेक करो है कि नहीं, 0 से पाई तक थोड़ा चेक करो, 0 से पाई तक that portion is 1 1 and on 2, otherwise minus pi to 0, otherwise minus 2 pi to minus pi. We can take any range, but particular, that means standard range is what? Standard range is 0 से pi तक, 0 से pi तक is your standard range, okay? So that means in this range it can be invertible, that's why its range is what? Closed interval 0 से pi तक, closed interval 0 से pi। लेकिन साइन एक्स क्या था, -π/2 to π/2, बट यहाँ पे cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो गया, 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई तक ये बाइजेक्टिव होता है। क्लियर? सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लेट्स डू द नेक्स्ट फंक्शन इज योर tan x। tan x क्या होगा एंड tan इनवर्स x क्या होगा। सो देखो हाउ टू राइट। tan x का ग्राफ क्या होगा, देखो ये तो tan x का ग्राफ पता है, लेकिन देखो एक बात ध्यान रखो, डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया है। डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि tan x मतलब sin बाय cos, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x इक्वल टू 0। ओके, cos x मतलब r-2l+1/2, माने इट इज नॉट डिफाइंड ऑड नंबर π/2, ऑड नंबर π/2, π/2, 3π/2, -π/2, -3/2, इन दिस पोजीशन इट इज नॉट डिफाइंड। That's why I'm drawing dotted line where it is not defined. Okay, so within two dotted line our graph has been done within two dotted line, keep in mind. So this is your tan x का ग्राफ, ये तो पता है, लेकिन इनवर्स क्या होगा, थोड़ा रिवर्स कर दिया, एक्सेस से वाई से थोड़ा चेंज कर दिया, y इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। यहाँ पे देखो डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x एक्सिस के वैल्यू क्या आ रहा है, negative infinity to positive infinity, as like range, its range is the domain of inverse। okay, so domain क्या होगा, -∞ से infinity तक, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन रेंज क्या होगा, थोड़ा देखो, रेंज मतलब y एक्सिस पर क्या आता है, जहां की हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, दैट मीन्स मस्ट बी दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। देखो 1 1 ऑन 2 कहां होगा, चेक करो थोड़ा, -π/2 से +π/2, -π/2 में -π/2 से +π/2 के अंदर मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं है, थोड़ा देखो ध्यान से, रिपीट नहीं है, दिस ग्राफ हैज नो रिपीटेशन, थोड़ा ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड रेंज इज -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 आई एम ड्रॉइंग डॉटेड लाइन बिकॉज at that point it is not including -π/2 और +π/2 में it is not defined, that's why I am drawing dotted line, that means -π/2 and π/2 is not including, that means it is open interval, our range is -π/2 to π/2, no doubt, but it is open interval -π/2 to +π/2, not close, open interval, both are not including, within this that is the range, -π/2 to π/2। क्लियर हो गया, दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स नेक्स्ट फंक्शन इज योर व्हाट, cot इनवर्स x। cot इनवर्स x एंड cot x का ग्राफ एंड डोमेन क्या होगा। cot x का ग्राफ थोड़ा देखो, ये तो cot x का ग्राफ है, cot मतलब cos बाय sin, cos बाय sin मतलब ये डिफाइन नहीं हो रहा है कहां पर, n पाई पर, दैट्स व्हाई डोमेन इज व्हाट, r-n पाई, ऑलरेडी डिस्कस्ड n पाई। देखो जहां पे पाई है वहां पे डॉटेड लाइन है, -π, -2π, 0,
पाई टू पाई, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड ऑन दैट पोजिशन। सो ये तो पता है ग्राफ कैसे होता है, कॉट 45 1, इसलिए 1 होता है, -40 -1, इसी तरह ग्राफ तो होता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन में थोड़ा देखो क्या चेंज हो गया। ये तो y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ओके। सो y एक्सिस इज योर रेडियन लाइन, x एक्सिस इज योर वैल्यू, ओके, x एक्सिस डैश। लेकिन क्या होगा देखो थोड़ा, कॉट 0 क्या होता है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड 0 पाई 2 पाई -पाई, क्लियर। कॉट 45 देखो, 45 क्या है, +45, यहाँ है 45 के लिए क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है, +1, देखो कॉट 40 +1। सो इसी तरह ये तो -45 के लिए -1। सो इसी तरह ये तो ग्राफ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा थोड़ा देखो, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, -∞ से +∞, जैसे कि हमारा रेंज यहाँ है -∞ से +∞ इज ओपन इंटरवल, दिस इज योर डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा, थोड़ा देखो, रेंज मतलब ये कहां से कहां तक 1 1 एंड ऑन टू होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड रेंज देखो 0 से पाई, थोड़ा ध्यान दो, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये जो ग्राफ आ रहा है ये रिपीट है क्या, थोड़ा देखो, ये 1 1 एंड ऑन टू है 0 से पाई तक, लेकिन 0 पाई इज नॉट इंक्लूडिंग। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे, 0 से पाई तक, ओपन इंटरवल 0 से पाई, दिस इज योर रेंज फॉर कॉट इनवर्स एक्स, नॉट क्लोज इंटरवल। ध्यान रखो, tan इनवर्स एक्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई ओपन इंटरवल, बोथ आर ओपन इंटरवल, tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ओके। सो जस्ट टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट फंक्शन देखो ध्यान से, हमारा sec x क्या होता है, sec x एंड sec इनवर्स एक्स। देखो sec x का ग्राफ एक्चुअली होता क्या है, sec x देखो, x में रेडियन वैल्यू, ग्राफ में थोड़ा देखो डोमेन क्या आता है, लेकिन क्योंकि sec x मतलब 1/cos, सो कहां पे डिफाइन नहीं होगा, cos x 2n + 1 π/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, दैट मींस π/2 में देखो डॉटेड लाइन, π/2 3/2, ओके, ऑल आर डॉटेड लाइन। लेकिन डोमेन क्या होगा, r - 2n + 1 π/2। लेकिन रेंज देखो थोड़ा, रेंज मतलब y एक्सिस -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से ∞, -1 एंड 1 इज इंक्लूडिंग, सो -∞ to -1 यूनियन 1 से ∞, दिस इज योर रेंज ऑफ sec x, ओके। क्योंकि sec 0 1 होता है ना, क्योंकि sec 0 मतलब 1/cos 0, 1/1 इज 1, सो यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन देखो हमारा टारगेट है sec इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस पर वैल्यू, y एक्सिस पर रेडियन, ग्राफ देखो क्या होता है, थोड़ा रिवर्स हो गया। सो sec 0 1 होता है, सो इसी तरह ये आ गया ग्राफ तुम्हारा sec इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन डिफरेंस थोड़ा क्या है, फ्रॉम व्हिच रेंज टू व्हिच रेंज इट कैन बी 1 1 sec इनवर्स x। देखो स्टैंडर्ड रेंज क्या होगा, तुम बोलोगे सर -π/2 में π/2, सो -π/2 से π/2 तक ये रिपीट तो हो गया ना, ये 1 1 कैसे होगा, सो इट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी 1 1, ओके, क्योंकि ये रिपीट होता है ग्राफ। लेकिन थोड़ा देखो 0 से पाई, थोड़ा ध्यान दो, 0 से पाई तक, इन दिस रेंज द फंक्शन इज 1 1, क्योंकि 0 से पाई मतलब दिस ग्राफ हैज कम, देखो थोड़ा ये हाफ, ये हाफ, थोड़ा चेक करो, ये हाफ, ये हाफ, ये आता है। सो इन दिस रेंज द फंक्शन इज 1 1, ये 0 से पाई। लेकिन 0 से पाई में अंदर में क्या डिफाइन नहीं है, π/2 में डॉटेड लाइन है, ओके। सो इसका डोमेन फर्स्ट पहला बोलो, डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, जैसे कि हमारा रेंज ये -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज देखो 0 to पाई, 0 इज इंक्लूडिंग,
पाई इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, क्योंकि पाई का वैल्यू आ रहा है, cos पाई इज -1, 1 बाई -1 -1 ही जा रहा है. सो 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाई 2. देखो पाई, क्योंकि इन दिस रेंज पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडिंग. ओके, सो 0 to पाई एक्सेप्ट मतलब माइनस पाई बाई 2, मतलब 0 to 180 डिग्री बट नॉट 90 डिग्री. 0 to 180 डिग्री बट नॉट 90 डिग्री. दिस इज द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स. याद रखो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 0 to पाई में ये 1 1 एंड ऑन 2 हो रहा है क्योंकि रिपीट नहीं है, लेकिन पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडिंग डॉट लाइन, बिकॉज पाई बाई 2 में ये डिफाइन नहीं होगा. cos 90 0 1 सेक मतलब 1 बाई cos, सो इट इज नॉट डिफाइन. दैट्स व्हाई द रेंज इज दिस. क्लियर? So pause the video, wrote it down. We will discuss the next graph is cosec inverse x. So last function हमारा क्या है ना, cosec x. So cosec x का थोड़ा देखो ग्राफ, cosec x का ग्राफ होता है. So cosec मतलब 1 by sin. यहाँ so cosec x कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, 1 by sin. sin मतलब n पाई में डिफाइन नहीं हो रहा है. So r minus n पाई. So r all real number except n पाई. That's why देखो पाई 2 पाई 0 माइनस पाई में ये डॉटेड लाइन है. इसी तरह यहाँ पे भी डॉटेड लाइन है, लेकिन रेंज क्या होगा देखो, सेम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जैसे कि हमारा सेक एक्स था. ओके, लेकिन कोसेक इनवर्स थोड़ा देखो, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या हो, थोड़ा डिफरेंट है. सेम डॉटेड लाइन मतलब पाई 2 पाई n पाई में डॉटेड लाइन है, नो प्रॉब्लम. बट कोसेक इनवर्स from which range to which range it will be 1 1. देखो थोड़ा स्टैंडर्ड रेंज क्या होगा, देखो हम चूज करेंगे 0 से पाई. ये हो पाएगा नहीं, क्योंकि 0 से पाई तक ये रिपीट हो गया. लेकिन माइनस पाई बाई 2 में प्लस पाई बाई 2, थोड़ा देखो उसका हाफ इसका हाफ. माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में कौन सा वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 0. देखो ये भी डॉट लाइन n पाई मतलब when n will be 0 it will be 0. so 0 is not including minus pi by 2 pi by 2. that means this graph, थोड़ा देखो, this graph and its half, okay, this half will be 1 1 and on 2 from minus pi by 2 pi by 2. लेकिन क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आई एम राइटिंग हियर, डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस सेम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम फॉर दी एज लाइक इट्स रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. लेकिन रेंज क्या होगा, थोड़ा देखो, रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 बोथ आर इंक्लूडिंग है कि नहीं, लेकिन -0 0 इंक्लूडिंग नहीं, -90 डिग्री टू +90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या है, 0 इज नॉट इंक्लूडिंग, -0. दिस इज द रेंज फॉर कोसेक इनवर्स एक्स. पता चला ना क्यों होता है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 में पाई बाई 2 में ये 1 होता है, इसका ग्राफ इसका हाफ इसका हाफ. ओके, ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा, लेकिन 0 इज नॉट इंक्लूडिंग, दैट्स व्हाई -0. क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. सो हमें तो डिस्कस कर दिया 6 इनवर्स फंक्शन का, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ एंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स डोमेन एंड रेंज. फॉर योर क्लास 12th, जस्ट टू रिमेंबर दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट. ओके, दिस वाज योर क्लास 11, दिस इज योर क्लास 12th. सो in this chapter just you will remember the what is domain and range of ITF. और कुछ नहीं, graph is not important is this part, domain and range. Okay, I will erase, then I will write what is domain and range of 6 ITF. Okay, so before that pause the video, note it down. So finally I am writing the domain and range of 6 inverse trigonometry function का. You have to remember this table. Okay, so देखो पहला फंक्शन sin इनवर्स x cos tan cos sec cosec. यहाँ पे जो मैं लिखा है डोमेन, ये पहला जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, जैसे कि sin cos tan cos sec cosec का ये रेंज होता है. थोड़ा याद करो, sin x का रेंज क्या था, ये था ना y एक्सिस में -1 to 1, ये डोमेन हो गया. दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. देखो ये पेयर sin cos 1 पेयर, tan cot 1 पेयर, sec cosec 1 पेयर. आंसर इज सेम, डोमेन इज सेम. देखो फॉर दिस -1 to 1
minus infinity infinity both are, and this is minus infinity minus 1 union 1 to infinity. This is the domain of 6 ITF. हमारा चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इज पार्ट इज दिस रेंज पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. ओके, सो रेंज क्या होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल. कॉस इनवर्स एक्स का क्या आता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल. लेकिन टैन कॉट थोड़ा देखो, टैन में क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बट ओपन इंटरवल. यहाँ पे भी कॉट इनवर्स के लिए 0 टू पाई बट ओपन इंटरवल. देखो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. साइन कॉस जो पेयर आया था ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन टैन कॉट जो पेयर आया ये ओपन इंटरवल. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस ट्रिक. ओके, सेकेंड इज और सेक इनवर्स एक्स. देखो सेक इनवर्स एक्स में क्या है, 0 टू पाई, थोड़ा याद करो, 0 टू पाई लेकिन पाई बाई 2 नहीं है, 0 टू 180 डिग्री लेकिन 90 डिग्री नहीं है. लेकिन कोसेक इनवर्स में क्या है ना, माइनस 90 टू प्लस 90 लेकिन 0 नहीं है. क्लियर, क्योंकि कोसेक मतलब 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन, सो 0 में डिफाइन नहीं होगा. यहाँ पे भी थोड़ा माने इसी तरह तुम्हें काम करो, ट्रिक याद रखो. ट्रिक सेक मतलब 1 बाई कॉस. देखो सेक मतलब 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस. कॉस कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई 2 में, ये तो पता है. देखो सेक इनवर्स के लिए और 0 टू पाई लेकिन पाई बाई 2 नहीं है. कोसेक मतलब 1 बाई साइन, 1 बाई साइन. साइन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, एन पाई में, जो कि 0 है, माइनस 90 टू प्लस 90 लेकिन 0 नहीं है. ओके, यू कैन रिमेंबर बाय यूजिंग दिस ट्रिक. क्लियर, सो यू हैव टू रिमेंबर द रेंज पार्ट फॉर दिस चैप्टर एट एनी कॉस्ट. जस्ट टू रिमेंबर दिस पेयर, ये क्लोज, ये ओपन, एंड दिस थोड़ा अलग है, सेक एंड कोसेक. ओके, उसके बाद हमारा क्या है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ. प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं है. प्रिंसिपल वैल्यू मतलब द वैल्यू लाइज विद इन इट्स रेंज ऑफ आईटीएफ. रेंज के अंदर जितना भी वैल्यू आ रहा है ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू. क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू. जस्ट टू रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू, टेबल के बाद ये लिखना, हेडिंग दे दो. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आईटीएफ लाइज विद इन इट्स रेंज, विद इन इट्स रेंज. ओके, इज called principal value. Principal value, okay, or principal value branch. Principal value branch, whatever may be the word you can use. Principal value क्या होता है ना, the value of ITF which are lie within its range. याद रखो, within its range, this is very important. This is known as the principal value of ITF. Principal value. Okay, you have to write this part after this table. After this table, just to write the concept of what is the meaning of principal value. Okay. So now in this lecture video we have discussed क्या है ना, domain, range and graph of ITF. Okay. And this table is very very important for this chapter. Also, what is the meaning of principal value? Definitely I am telling you will get in exam from this concept is 1 mark. Find the principal value of sine inverse something. Definitely you will get the question. Find the principal value of sine inverse, suppose half. इसी तरह क्वेश्चन तुम पाओगे, how to calculate principal value. Okay, so we'll do problem in next lecture video. Okay, so I think all of you clear regarding the concept of domain, range and graph of ITF. Okay, so in next class we will discuss some properties of ITF, also problems. Clear? So again I am telling, if you like or enjoy this video, so just to like and share, and if you are not subscribe my channel to get more update the new concept of new type of video. Okay, so up to that I am keeping, take care, bye bye.